Hey guys, hope all of you are doing great, and we are back with one more session of NCERT solution. And guys, we are now doing heredity and evolution, page number 147 का question number 3 and 4. Very good questions guys. And पहले आपके comments पढ़ लेते हैं. Yes, Manisha Thomare says, sir, session was amazing, really helpful. Thank you, beta Manisha. Kuldeep Kaur says, after watching, she started understanding the questions. Thank you, beta Kuldeep Kaur. Yes, guys, you can use this code ARPRO to get extra 20% discount on Vedantu app. ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रैश कोर्सेज एंड अदर थिंग्स आर स्टार्टिंग अप. डू जॉइन इन क्रैश कोर्स में. आई एम टीचिंग, अभिषेक सर इज टीचिंग एंड हर्ष सर इज टीचिंग, सो डू जॉइन इन ओवर देयर. एंड यस, तो लेट अस सी द क्वेश्चन. यस गाइस, अ मैन विद अ ब्लड ग्रुप A marries a woman with a blood group O and their daughter has a blood group O. तो मैन क्या हो सकता है गाइस? मैन का अगर ब्लड ग्रुप A है तो इट कैन बी IA है ना, और IA small I, right? And women can have I or I, here also small I, तभी उनका O ब्लड ग्रुप होगा. गाइस, इस केस में जब ये क्रॉस होगा तो सारा एवरीथिंग इज गोना बी IA एंड I. इन दिस केस ऑल द चिल्ड्रन विल हैव A ब्लड ग्रुप, बट ऐसा तो है नहीं. दिस मीन्स द फादर इज नॉट द दिस केस, मतलब फादर इज दिस केस. ठीक है, इस केस में क्या होगा गाइस? व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन? लेट अस ड्रॉ. छोटा I है ना, कैपिटल IA एंड छोटा I. ठीक है, तो वी हैव कैपिटल IA, छोटा I, then again IA, छोटा I, then small I and small I. So 50% chances are there it is gonna be O blood group and 50%, yes guys, A blood group. 50% chances are there they are gonna be A blood group and 50% guys O blood group. Very good, है ना? तो does this tell us, is this information enough to tell you which of the trait will have O blood group or yes guys A blood group? क्या information sufficient? And no, this information was not sufficient to tell us which is dominant, है ना? क्या dominant है ये बताने के लिए हमें sufficient नहीं है. Yes, let us understand why. Yes, to tell it is insufficient to tell whether trait A or O is dominant, है ना? In case 1, as I told you, है ना, let's assume A is dominant and then the father may have, yes guys, IU. Mother will be having both IO. In this case, what is happening guys? All the blood groups are gonna be A blood group. In the case 2, as I told you, 50% are gonna be A and 50% are gonna be, yes guys, O. तो इस केस में we are not able to understand, है ना, हमें इसमें समझ नहीं आ रहा कि which one is dominant और recessive. हमें पता कैसे चलता है कि dominant और recessive कैसा है? When we are taking pure parents, मतलब pure A blood group और pure O blood group. ठीक है, अगर हम ये बताते हैं कि हाँ प्योर मतलब प्योर ए मतलब IA है, कैपिटल IA है ना, IA है और यहाँ पे स्मॉल I, अगर ये दोनों प्योर हैं और इनके बेबीज सबका A ब्लड ग्रुप आता है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ दे आर गोना बी, यस गाइस, दे हैव, यस, we can identify which one is dominant or which is recessive. Why were we not able to do over here? Because there was a confusion in the father का ट्रेड्स. फादर का ट्रेड्स में दो चीजें हो सकती थी, इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी. अगर ये क्लियरली बताते कि जो फादर का ट्रेट है वो प्योर ए ब्लड ग्रुप है और जो मदर का है दैट इज रिसेसिव ओ ग्रुप, तो देन वी वुड हैव बीन एबल टू सी, और बेबी का ए ब्लड ग्रुप है, तब हमें समझ आता था कि हाँ भैया ए इज डोमिनेंट. समझ पा रहे हो? देयर वाज क्लैरिटी, नॉट क्लैरिटी इन द ब्लड ग्रुप ऑफ द यस मैन. विमेन का क्लैरिटी था बिकॉज आई वी नो रिसेसिव है. मैन का आई कैपिटल आई भी हो सकता है या फिर IA भी हो सकता था. आई गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द होल पॉइंट, है ना? आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल, है ना? दोबारा से एक बार सुन लो. क्यों हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्यों नहीं हम बोल सकते कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है? हम तभी बता पाएंगे कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है जब हमें प्योर पेरेंट्स मिलेंगे, प्योर A ग्रुप और प्योर O ग्रुप. In this case, we have pure O group, no doubt. But here there is ambiguity in the father का trait, है ना? And the first generation में O group आ गया है. This one is there, right? So using this information, we cannot identify कि which one is dominant और which one is recessive. But we can definitely identify कि father का क्या हो सकता है. अगर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को रिफ्रेश करते हैं. What is the, देखो फादर का A है, मदर का O है, डॉटर इज O. What would be the genotype of father? In that case, we could have come up where, yes guys, IA and I is the father का जीनोटाइप, क्योंकि पहले केस में तो सारे के सारे एक होने चाहिए थे. समझ पा रहे मेरी बातों को? इस तरह से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा. ठीक है,
Now you'll be like, sir, how do we write it? How do we write it, guys? You will write case 1, you will write case 2, then you will tell to identify whether a allele is dominant or not. We should cross a pure traits, two pure traits, so that we can study the first generation and also the second generation. Okay? Yes, since in both the assumptions the child can have blood group O, so we cannot establish which trait is dominant. Yes guys, since in this case, yes, इस केस में देखो, इस केस में O तो हो ही नहीं सकता, तो we have negated this part, but here also we cannot establish that there's 50% A blood group and 50% O blood group, so we cannot establish which one is dominant or which one is recessive. मतलब you're just putting it into words. ठीक है, ये लास्ट स्टेटमेंट हमारी तरफ से रॉन्ग है, ये जो यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट लिखा है ये रॉन्ग है, बट आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है यहाँ पे केस 1 कैन नॉट बी देयर, है ना. आप ये दोनों पॉसिबिलिटीज लिखोगे, फिर आप लिखोगे कि केस 1 कैन नॉट हैपन because here all the child is having A blood group, so this cannot happen. In the second case 50% of the children will be O, 50% will be, yes guys, A, so we cannot establish. If all of them were gonna be A or all of them are gonna be O, then we can establish. समझ पा रहे हो? F1 जनरेशन में क्या होता है, सारे के सारे एक ट्रेट होता है, और F2 में क्या होता है 3:1 रेशियो होता है, तभी हम क्या बता पाएंगे कि कोई डोमिनेंट है या रेसेसिव है. अगर और कोई भी रेशियो होता है तब हम नहीं बता पाएंगे. समझ पा रहे हो? F1 में क्या होना चाहिए 100% और F2 में क्या होना चाहिए 3:1 रेशियो होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा टॉल है, कौन सा रेसेसिव है, मतलब सॉरी कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है. और ये कब होता है, ये तभी होता है जब हम दो प्योर पेरेंट्स को ब्रीड कराते हैं, जिनमें से एक रेसेसिव प्योर पेरेंट है, एक डोमिनेंट प्योर पेरेंट है. गाइस प्लीज फोकस ओवर दिस. हाउ डू यू राइट इट, मैंने बताया आपको केसेस लिखने का. देखो इन सब चीजों को ना वर्ड में पुट करना बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं क्या चाहता हूं आप लोगों को, आप बस लिखो केस क्या. ये तो केस तो बना लेते ना, केस 1 बनाया, केस 2 बनाया, फिर आप देखो केस 1 तो पॉसिबल ही नहीं है और केस 2 में 50-50% बन रहा है, तो हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रेसेसिव. बस इतना लिखना है आपको. ठीक है, आगे चलते हैं. हाउ इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमिन्ड बाय द ह्यूमन बीइंग. बहुत ही इजी. अगेन यहाँ पे लिख दो, एक मेल XY, फीमेल XX, है ना. दो तरह के गैमीट्स बनेंगे XY, अगेन X, फिर पुनेट स्क्वायर बना दो XX, XY, X, XY, XY. So yes, you can draw like this, and you know this is male, this is female. तो बहुत ही पहले से हम करते आ रहे हैं. Yeah, this is very easy one. Yes, let us see. The sex of a human child is determined by the set of sex chromosomes they possess. है ना. The human male child has X and Y chromosome. है ना. Yes, whereas female produces only one type of egg. Obviously, you know, it produces same type of eggs, whereas male produces two different types of sperm. 50% having X, 50% having Y. है ना बेटा. एंड इसको आप ड्रॉ कर देना. ठीक है. इफ अ स्पर्म कंटेनिंग X क्रोमोसोम फर्टिलाइजेस एन एग, इट विल बी अ डॉटर. इफ अ स्पर्म कंटेनिंग Y फर्टिलाइजेस एन एग, इट विल बी अ सन. ये बहुत ही ईजी है, बहुत बार हम कर चुके हैं. ठीक है, बट गाइस प्लीज इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना. अगर आप कर सकते हो तो ऐसा भी कर देना, है ना. ये मेल बनाया आपने, ऐसा बना देना, आपकी टीचर खुश हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे लिख देना X Y X, है ना. फिर लिखो गैमीट लिख देना यहाँ पे. यू कैन राइट गैमीट, here X gamete, Y gamete, here X gamete, then you can do like this, है ना. फिर लिख दो X मतलब मेल. ये कर लो, ज़्यादा अच्छा जाएगा. पुनेट्स करो, काफ़ी इजी हो जाएगा. तो आपकी टीचर कहेंगे इससे तो एफर्ट ही नहीं मारा, तो नंबर नहीं देंगी, पर ऐसा करोगे तो हो जाएगा. ठीक है. तो यस गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको कैसा लगा, ये हेल्पफुल था कि नहीं. एंड यस, टुडे वी डिड पेज नंबर, सॉरी इससे पहले हम पेज नंबर 1 और 2 कर चुके हैं. टुडे वी डिड क्वेश्चन नंबर 3 and 4. डू वॉच दिस ऑल्सो. 1 और 2 भी हमने करा हुआ है. एंड यस गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सेशन कैसा लगा. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.